Hello dear students and welcome to the second video lecture of standard 9 science chapter number 6 tissues. So in first video we have discussed till topic number 6.2.2. ठीक है. Now in today's video I will discuss about topic number 6.2.2 which is permanent tissue. Okay. Yes. So let's start. Permanent tissue. What happens to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. Meristematic tissue में क्या होगा? When they will divide, then at certain time they will lose their ability to produce new cells and to divide. So they are called temporarily tissues. But this process of taking a permanent shape, size and function is called differentiation. ठीक है. ये जो डिफरेंट डिवाइड हो रहा है डिफरेंट साइज में, उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे. डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. वो डेवलप वेरियस टाइप्स के परमानेंट टिश्यू को डेवलप करेंगे. नाउ लेट्स स्टडी एक्टिविटी 6.2. टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसिस और सेक्शन. आपको प्लांट की स्टेम को लेकर उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कट करना है. Now stain the slices with saffron. Place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin. Cover with cover slip and observe under a microscope. Observe the various types of cells and their arrangement. Compare it with figure 6.3. Now answer the questions based on your observation. तो आपको क्या करना है, वो जो आपने स्लाइस को कट किया था उस स्लाइस को आपको ग्लिसरीन के उसमें ड्रॉप डालना है, फिर उसको कवर कर देना है और फिर उसको कवर करने के बाद आपको माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी अरेंजमेंट देखनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? सो योर आंसर विल बी नो. All cells are not similar, they are varied with their shape, their size and their structure. How many types of cell can you see? So you will see around 7 to 10 types of cells in stem. Then can we think of reasons why there would be so many types of cells? So each type of cell will perform different function and hence there are different types of cells. Cells will performing similar functions form one group. The development and growth of this plant is depend on these cells and hence there are different type of cell. ठीक है. Every cell will have to perform different type of function. For performing this function they have certain characteristics, certain shape, certain size. Okay, so that's why they are all different. We can also try to cut sections of plant roots. We can even try cutting sections of root and stem of different plants. Now experiment exercise topic number 6.2.2. उसमें first sub part which is simple permanent tissue. Okay, it is a part of permanent tissue. First is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. Okay, there are two types of permanent tissue. So first we will study simple permanent tissue. Few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with the cell walls. They are living cells. They are usually loosely arranged. Thus large spaces between cells are found in this tissue. ठीक है. इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन ऑन द अपर लेयर ऑफ एपिडेमिस. ठीक है. बेनेथ, यस, नॉट अपर सेल, बेनीथ द एपिडेमिस, उसके नीचे आएगा. और पेरेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है. उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट सेल वॉल्स होती है, सेल्स होंगे जो लिविंग होंगे और उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है. ठीक है. दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड. उस स्पेस में वो लोग फूड स्टोर करेंगे. इन सम सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल, यस, इन दिस, ओके, दिस ग्रीन आर कॉल्ड पेरेनकाइमा. ये पेरेनकाइमा आप लोग यहाँ से देख रहे हैं. ठीक है. इस ऑल को पेरेनकाइमा कहते हैं. बीच में स्पेस होती है जहाँ पे वो लोग फूड सेव करेंगे, स्टोर. इन सम सिचुएशंस इट कंसिस्ट क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा उसको क्लोरोवर्ड के जरिए क्लोरेनकाइमा नाम है. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such parenchyma type
इज कॉल्ड एरेंकाइमा। ठीक है, जो एक्वाटिक लाइफ में जो पेरेंकाइमा होगा उसको एरेंकाइमा बोलेंगे और वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। कैविटीज होगी तो वहाँ पे वो लोग एयर और वाटर का बैलेंस करके उसको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। The flexibility in plants is due to the another permanent tissue collenchyma. It allows bending of various part of plant like tendrils and stems of climbers without breaking। आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े थोड़े पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो बेंड हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो बेंडिंग है वो बेंडिंग कौन कौन सा पार्ट करता है, विच इज कॉलेनकाइमा, without breaking them. It also provides mechanical support. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated, and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. So, as you can see here, here is parenchyma, above is collenchyma. Okay, yes. सो ये उनको हेल्प करेगा बेंडिंग होने में और उनको ब्रेक नहीं होने देगा। और दिस सेल ऑफ टिश्यू दे विल बी लिविंग एलोंगेटेड, लॉन्ग होंगे, इरेग्युलरली थिकन, जो थिक होंगे कॉर्नर्स से। देयर इज वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। वो स्टीफ प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमाटोस टिश्यू। कोकोनट का जो हस्क होता है आउटर लेयर वो स्क्लेरेनकाइमाटोस का बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. ठीक है, जो कोकोनट का आउटर लेयर होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू होता है, उसको स्क्लेरेनकाइमाटोस टिश्यू बोलते हैं। Now activity 6.3, टेक अ फ्रेशली। ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से टाइप देखे, 3 टाइप्स देखे। फर्स्ट इज पेरेनकाइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज क्लेरेनकाइमा। नाउ एक्टिविटी 6.3, टेक फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रोयो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. Remove this peel and put it in a petri dish filled with water. Add a few drops of saffron in, wait for a couple of minutes and then transfer it into slide. Gently place a cover slip over it and observe under microscope. So आपको रोइयो के लीफ लेने हैं, वो मैं आपको लेक्चर में उसका डायग्राम दिखा दूंगा कि कैसे दिखते हैं वो लीव्स। उसको आपको प्रेशर से ब्रेक करना है, उसको कट कर देना है, ब्रेक कर देना है, और आफ्टर उसको ब्रेकिंग आपको स्ट्रेच करना है उसके पील्स और उसकी स्किन को, ताकि वो थोड़े लॉन्ग हो जाए। देन वो पील को आपको रिमूव कर देना है और उसको आपको एक डिश के अंदर पुट कर देना है। फिर उसके अंदर आपको सेफ्रेन इनके ड्रॉप्स डालने हैं। फिर आपको 5 to 10 मिनट्स वेट करना है। फिर उसको आपको स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है और उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रख देनी है ताकि आप माइक्रोस्कोप में उसको आराम से देख पाए। फिर आपको माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्वेशन करना है। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। तो आप लोग जो ऑब्जर्व करेंगे वो सेल का आउटर लेयर होगा जिसको एपिडर्मिस बोलेंगे। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. वो जनरली थिन होते हैं, सिंगल लेयर्स के बने होते हैं, बट थिकर कहाँ पे होंगे, जहाँ पे भी वो वाटर के अंदर है वहाँ पे वो थिकर होंगे, क्योंकि वाटर लॉस बहुत क्रिटिकल है। वो ना हो इसकी वजह से उनकी जो सरफेस है वो सरफेस उनको प्रोटेक्टेड रखेगी। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो पार्ट सारे प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। एपिडेमिकल सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। आप लोग प्लांट की बाहर की सरफेस को चेक करेंगे ना, तो कई बार वो आपको थोड़ी वैक्स
वैक्सी टाइप की दिखेगी और थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे वहाँ पे। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई। वो उसको फंगाई से प्रोटेक्ट करेगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देगा, और कोई मैकेनिकल मतलब मशीन या बाहर से कोई उसको इंजरी करने का ट्राई करेगा तो उससे वो बचाएगा उसको। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसिस। अभी देखिए, वो उसका काम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखेगा, सो विदाउट स्पेस इट विल बी फॉर्म, सो देयर विल बी वेरी लेस और नो zero intercellular species. Most epidermal cells are relatively flat. Often the outer and side walls are thicker than inner walls. They will be flat, उनकी सरफेस एकदम फ्लैट होगी, और उनकी आउटर एंड साइड वॉल है वो थोड़ी थिक होगी इनर वॉल की कंपेयर में, बिकॉज उनका रोल प्रोटेक्शन का है। तो आगे की लेयर अगर थिक होगी तो प्रोटेक्शन में उनको ईजीनेस रहेगी। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडेमिस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देखा है कि स्टोमेटा जो लीफ होते हैं वो लीफ के बीच में स्टोमेटा एज अ होल्स होते हैं जो ब्रीथिंग का काम करेंगे। yes these green are called stomata, these okay। ये लीफ को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा है, तो ऐसे ऐसे स्टोमेटा उन साइंटिस्ट को देखने को मिले। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमेटा का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो गार्ड सेल, मतलब ये एक ग्रीन पार्ट और दूसरा ग्रीन पार्ट, ये दोनों ग्रीन पार्ट है ना, ये हाँ उसको गार्ड सेल बोलते हैं। किडनी शेप होता है, किडनी मतलब ऐसा ऐसा शेप उनका होगा। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द ऑटो एटमोसफियर। ट्रांसपीरेशन विच इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विल ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू आउट स्टोमेटा। ठीक है, तो जो वाटर वेपर वो लोग बाहर निकालेंगे वो भी ये स्टोमेटा के स्पेस में से निकालेंगे। Recall which gas is required for photosynthesis. Find out the role of transpiration in plants. ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच गैस यू विल रिक्वायर? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ओके, सो प्लीज फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड व्हाई ट्रांसपीरेशन इज helpful in plants. This question also, otherwise we will discuss it in lecture. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that generally increase the total absorptive surface area. वो लॉन्ग उसके थोड़े हेयर होंगे बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करेगा और वो पार्ट भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सो yes, did you find the answer of this transpiration in plants? Transpiration will help the plant to getting rid of excess water. It also creates transpiration pool due to which the sap occurs in plants. Dissolved minerals in the soil are transferred to plants by this mechanism. So due to this reason this transpiration is very important. जो उसके अंदर का वेस्ट होगा ना वो वेस्ट वाटर के फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाएगा। In some plants like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Remember this word, cutin. Chemical substance with waterproof quality on its outer surface. Can we think of a reason for this? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रांच की आउटर लेयर है ना वो डिफरेंट है कंपेयर टू स्टेम। As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेगा और ओल्ड होता जाएगा तो वो जो आउटर लेयर है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. ठीक है, सेल की कॉर्क मतलब उसका जो थर्ड होता है उसका लेयर इन्होंने देखा, तो उसका लेयर आपको
माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये पार्ट क्या है, साइंटिस्ट ने सारे के सारे ये जो एपिडेमिक्स और वो सब बात कर रहे हैं हम लोग, वो सारे पार्ट्स माइक्रोस्कोप में स्टडी किए, तो उनको माइक्रोस्कोप में जैसा दिखाई देता था वैसी इमेज यहाँ पे पुट की है। हम लोग नेकेड आई से देखेंगे तो नेकेड आई से हमको ऐसा शेप देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो these are the different parts of simple permanent tissue. Now we will study topic 6.2.2, which is complex permanent tissue. The different types of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cells which look like each other. जो अब आगे हम लोगों ने सिंपल देखे वो एक ही टाइप के सेल के बना था जो एक सरखा मतलब लुक लाइक सिमिलर। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, उनको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। लेकिन येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन टिश्यू में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं लेकिन सारे कोऑर्डिनेट करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So xylem and phloem are examples of such complex tissues, ठीक है। Remember this, xylem and phloem both are example of complex permanent tissue, whereas parenchyma, sclerenchyma, collenchyma they are example of simple permanent tissue. So आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम कौन कौन से और उनके फंक्शन कौन कौन से ये याद रखना है। सेम वे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन से है और उनके फंक्शन कौन कौन से है ये आपको मेनली याद रखना है इसमें। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। वो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग मतलब वो पास करेंगे वाटर को, एयर को, फूड को, सभी को पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पास करेंगे। वेस्क्यूलर टिश्यू is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different type of cell in the vascular bundle, ठीक है। In top 6.3 yes, here these green are called phloem, okay. This part is phloem, this is xylem, and this white are bundle, they are vascular bundle, okay. This red is xylem whereas this white are vascular bundle. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम के अंदर क्या क्या होता है, ट्रैकियाट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकियाट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड many are dead cells when mature. Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function. देखिए जाइलम के पार्ट्स के फंक्शन दिए हैं, तो ट्रैकियाट्स एंड वेसल्स जो है फर्स्ट टू वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली पास होने में हेल्प करेंगे। फिर पेरेनकाइमा जो होगा वो फूड को स्टोर करेगा और जाइलम फाइबर्स है वो सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस इसके आ गए, ट्रैकियाट्स, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स के। Phloem is made up of 5 types of cells. First is sieve cell, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and the phloem parenchyma. Figure 6.7d, okay. Yes, this section of phloem, okay, this figure. So here all the parts you can see. First is sieve plate, then below is sieve tube, then green is phloem parenchyma, this white part is companion cell, and all this section is called section of phloem. Phloem is made up of 5 type of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers and the phloem parenchyma. Sieve tubes, now a function of every sieve. So sieve tubes are tubular cells with perforated walls.
Phloem transports food from leaves to other parts of the plant except phloem fibers. ठीक है, तो देखिए फ्लोएम का फंक्शन क्या है, वो फूड को, यस, फूड जो लीव्स ने बनाया है उसको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। जबकि जाइलम का फंक्शन क्या था, जाइलम जो रूट ने जो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब किए हैं उनको अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली स्टेम के ज़रिए सारे के सारे लीव्स और ब्रांचेस में पहुंचाने का काम जाइलम था। तो जाइलम नीचे से ऊपर वाटर को पहुंचाएगा और फ्लोएम लीव्स में से ऊपर से नीचे जो फूड उसने बनाया है उसकी एनर्जी को सब प्लांट में ट्रांसफ़र करेगा। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। फ्लोएम के फाइबर्स के अलावा बाकी के जो फ्लोएम सेल्स है दे आर कॉल्ड लिविंग सेल्स। ओके ओके, सो ये था हमारा प्लांट टिश्यूज। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी दिस 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सो सिंपल टिश्यूज कौन कौन से थे, पेरेन्काइमा थे, कोलेन्काइमा थे एंड स्क्लेरेन्काइमा थे। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। सो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द प्लांट सच एज रूट एंड स्टेम एपिसिस और टिप्स। जो पार्ट प्लांट का ग्रोथ होगा ना, नीचे से रूट ग्रो होगा तो रूट के टिप पे, और ऊपर से प्लांट की जो स्टेम और टिप्स जो ग्रो होगी वहाँ पे हमको एपिकल मेरिस्टेम फाउंड होगा। विच टिश्यू मेक्स अप देयर हस्क ऑफ कोकोनट। सो हस्क ऑफ कोकोनट स्क्लेरेनकाइमाटोस से बना हुआ होता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ फ्लोएम। सो फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स है। सो फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूंट्स है सीव सेल, सीव ट्यूब, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Okay, these are the different part of phloem. ठीक है, सो ये था हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज यहाँ पे फिनिश होते हैं, तो आपको सारे टिश्यू और उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस याद रखने हैं। देन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द एनिमल टिश्यूज। ओके, so I hope you understand it, and if you have any doubt then please ask me in the lecture. Okay, so bye, see you till the next lecture.